Hello everyone. This side Poonam Grover from St Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I am start with my topic, which are based upon your digital electronics under Unit 1, lecture number 2, and this lecture is beneficial for electrical 4th semester student. So in my today lecture, I will cover various topic, that is Boolean algebra, law of Boolean, explanation of Boolean law, Boolean algebra function, various ICs related to your logic gates, and your number systems. So in number system, we are cover various topic, that is conversion, like conversion going from your binary to decimal or decimal to binary, or either ones or twos complement, addition, subtraction, or you can say binary addition and subtraction. So in my today topic, I will cover your most important part of your digital electronics. So firstly start with your Boolean algebra. Boolean algebra is a mathematics we use to analyze digital gates and circuits. We can use these law of Boolean to both reduce or simplify a complex Boolean expression in an attempt to reduce the number of logic gate required. So हमें क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, if you're getting at the output a large complex boolean expression, so that boolean expression will be minimized with the help of your boolean law. So that will be discussed in the later part of the video. So to reduce that particular expression in the form of boolean, we can use various law. So by the use of various law, you can reduce the boolean expression in a simple form. So by reducing the expression, after that you can design that particular logical expression with the help of gates. In that case, the logic minimization of gate is also came. So here we can show the various law of the boolean, that is if you add a plus 1, अगर a plus 1, that is called एन्यूमलेंट लॉ. एन्यूमलेंट लॉ, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम किसी बिट के अंदर हम वन ऐड करते हैं, तो ए मुझे नहीं पता, ए एंड बी रिप्रेजेंट योर बाइनरी वेरिएबल्स. सो ए की वैल्यू आप जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, लेकिन एज पर दी रूल्स अगर आप वन प्लस वन करते हैं, दैट इज अ लॉजिकल गेट विच कैन परफॉर्म योर ओरिंग फंक्शन. क्लियर हेयर. तो अगर आपका ए जीरो है, तो जीरो प्लस वन आउटपुट इज वन. अगर वन प्लस वन होता है बाय द ओरिंग गेट, तो भी वन होता है, क्योंकि इन फंक्शन से आप गेट्स के फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, ना कि बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स लगाएंगे. तो अगर हम देखा जाए, अगर हमने दो बिट को ऐड करना है एज पर योर लॉजिक ला, वी कैन से यू कैन, अगर और कर ऐड करना है तो आप और गेट यूज करते हैं. तो ए प्लस वन को ऐड करने के लिए आप और गेट यूज करेंगे. ए गेट्स की एक इनपुट ए होगी और दूसरी आपकी वन होगी, और इस इनपुट्स को आप चेंज करोगे आइदर जीरो और वन. तो अगर मैंने ए की वैल्यू जीरो रखी है, जीरो प्लस वन वन, एंड वन प्लस वन इज आल्सो वन. So its equivalent switching circuit can be shown here. Here the one will be applied directly by a line which are switches to on. Another one is called that represent your one, or a will be changed as per your switching condition. Clear. So either that will be one or either that will be zero. Clear. So the both are connected in parallel way. So that law is called your enumelant law. Clear. Again you can come with your a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होता है, यानी कि अगर हम ए में ए की वैल्यू जीरो रखें, तो जीरो प्लस जीरो तब भी वो जीरो आएगा. जीरो किसको माना था आपने, ए ने. अगर आप जीरो ए की वैल्यू वन रखते हैं, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन. वन क्या है आपका, ए ही है. क्लियर. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली उस जो ऊपर आपका ये क्लोज सर्किट था, सिंपल विद द हेल्प ऑफ वायर, दैट विल बी शो एज एन ओपन फॉर रिप्रेजेंटिंग योर zero, and you can change the particular a value by the use of switches. So if it is on, it will be behaves as one. If it is open, it will be behave as in zero. So that quantity is called your identity. Clear. Again you can come with your like a into 1 minus a. Clear. So there represent a 0 into 1, that is जीरो इंटू वन जीरो, माइनस ए ही आएगा. लेकिन अगर वन इंटू वन करोगे तभी वो माइनस ही आएगा. इट मीन्स ए इज सीरीज विद द क्लोज्ड ऑफ माइनस ए. ए इंटू वन इज इक्वल टू वन है, ये इक्वल टू का साइन है here, that will be show here equal to sign. So a into वन is equal to a. It means अगर आप a की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो जीरो इंटू वन जीरो, तो आपने ए भी जीरो रखा था, आंसर में भी क्या आया आपका, जीरो आया है. अगर ए की वैल्यू वन रखते हैं, तो वन इंटू वन वन, तो आंसर में भी क्या आएगा आपका, ए ही आएगा, जो कि आपने क्या assumption की थी, वन की थी. क्लियर. ऐसी सेम केस फॉर योर ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स अगर ए की वैल्यू
चाहे ए 0 है चाहे 1 है, लेकिन वो 0 से अगर मल्टीप्लाई होता है तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्लोज स्विच लगाया हुआ है ये पाथ के अंदर, और ए जो है वो स्विच की तरह काम करेगा। यू कैन चेंज द particular value for the a by the use of switches. If switch is on, it will represent your 1. If switch is off, it will be represent your 0. Same as for your, अगर आपने 0 करना है प्रेजेंट, अगर उसको पैरेलल में लगाएंगे तो आप एडिशन कर रहे हो। क्लियर। और अगर आपने सीरीज में लगाया है तो आपने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। क्लियर। सो एज पर योर you can say theory of your network theory, you can study very well in your network theory part. So here a plus a is equal to a. इट मीन्स अगर हम a की वैल्यू 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड इंडेपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्लियर। सो इसमें क्या होगा कि अगर आप ऐसे ही अगर आप a प्लस a करेंगे तो a ही आएगा। इट मीन 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1, मतलब कि अगर आपने ये दोनों a माने हैं तो इसमें से कुछ भी लीजिए, चाहे 0 लीजिए चाहे 1 लीजिए, उसने आना a ही है। तो a की दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, तो 0 आ सकती है या फिर क्या आएगी, 1 आएगी आपकी। क्लियर है। लेकिन ये दोनों किस में होंगे, एडिशन हो रहे हैं तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो दैट इज, अगर ये एडिशन कर रहे हैं तो पैरेलल में, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सीरीज में। क्लियर। ऐसे ही a इंटू ए इजिकल टू ए इंटू है, इंटू करने के लिए आप दोनों को सीरीज में लगा देंगे, तो दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। Again you can come with your note of A. If you apply the double negotiation, it means आपकी नोट गेट से आउटपुट निकलती है A बार, आपने दोबारा फिर उसको नेगोशिएशन के लिए दोबारा फिर उस आउटपुट को नोट गेट के अंदर डाल दिया, जिससे आपका डबल इन्वर्जन आने की वजह से वो इन्वर्जन आपस में कैंसिल आउट हो गया और आंसर में क्या मिलेगा, आपको ओनली A मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अगर आप किसी A को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, अगर आपने 0 माना तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, तो ये वैल्यू 0 है तो ये 0 है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 0 प्लस 1 1। क्लियर। अगर मैं ये वैल्यू 1 मानती हूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, तब भी उसने क्या आना है, 1 आना है। इट मीन्स दैट शुड बी शो योर कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी of your Boolean law. So I can explain one by one Boolean law and its property. By the use of these law, we can minimize our Boolean expression in a short form. That will be also share with you with one example in the later part of the slides. Clear. So here we also mention a into a bar is equal to 0. तो अगर आप किसी कॉम्प्लीमेंट को इस किसी लाइक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने 1 माना, 1 इंटू 0 0 ही आया, 0 इंटू 1 तब भी उसने क्या आना है, 0 ही आना है। क्लियर। और इसमें क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए। ये तो सिंपल एक थ्योरी है कि अगर आप किसी को, आंसर तो सेम ही आना है ना, चाहे आप a में b ऐड कर दीजिए या फिर b के कंटेंट a में ऐड कर दीजिए, answer will be same. So that's why that property is called here, you can say commutative property. Clear. अगर आपको कम्यूटेटिव मीन्स जिसको लाइक चेंजेस करने पर उसमें कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, दैट इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड सेम एज फॉर प्लस यू कैन से, और हियर वी यूज योर multiplication, so that's why we use here series connection of your a and b. So a into b is equal to b into a. Clear. And the last one, that is a most important topic of this today lecture, that is a de Morgan theorem. तो as per the de Morgan theorem, if a प्लस बी बार, अगर आप इस बार को अलग करना चाहते हैं तो ये बार एक सिंगल टाइम है और बीच में एक प्लस का ऑपरेटर से बार अलग होना चाहता है, तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, बुलियन डी मोर्गन के थोड़ा, अगर आपने उन दोनों बार को अलग करना है तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है, इनटू में। ऐसे ही अगर आपने ये ए इंटू बार सारे का बार दिया हुआ था, अगर इस बार को आपने सिंगल बार में चेंज करना है, इट मीन्स प्लस को आपने और को आपने एंड लॉजिक में चेंज करना है और एंड को आपने और लॉजिक में चेंज करना है, तो जब ये बार आपस में डिवाइड होगा तो इनटू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में। सो दैट प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समटाइम्स you can also in your exam you can also the 2 marks question, what do you mean by de Morgan theorem, and कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। क्लियर। या फिर आपको जो मैंने लॉज पहले स्टडी करवाए हैं, वेरियस कम्यूटेटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यू कैन से डिपेंडेंट लॉ, तो ये इन लॉज के ऊपर भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन एनी 2 लॉ। क्लियर। या तो लॉ के नाम दिया होगा या सिंपल बताया होगा कि आपने इन 2 लॉज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्लियर।
सॉरी। नेक्स्ट बिकम एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। मैंने अब हर एक लॉ की एक्सप्रेशन को वो करवाया है। फर्स्ट आपका क्या था, अगर हम किसी ए को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। इट मीन्स अ वेरिएबल एंडेड विद जीरो विल ऑलवेज जीरो। इट मीन्स चाहे आप कुछ भी हो, यहाँ जीरो हो चाहे वन हो एक की वैल्यू, लेकिन अगर उस किसी भी कंटेंट को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर एन्यूमलेंट लॉ। ठीक है, इसके अंदर एक और भी ला आता है, दैट इज ए प्लस वन। चाहे आप किसी कांस्टेंट बिट की एडिशन करें, कांस्टेंट बिट की क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें, वो आपका सेम ही आना है। तो ये वन यहाँ पे जीरो है तो यहाँ जीरो आएगा, वन है तो यहाँ वन आएगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर एन्यूमलेंट लॉ। क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या है कि अगर आपने यहाँ पे एनरोलमेंट को आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए आपने इनके कंटेंट को चेंज कर दिया। कैसे किया है, पहले आप ए इंटू जीरो करवा रहे थे, अब यहाँ पे ए प्लस जीरो करवा देंगे। यहाँ पे ए प्लस वन था, यहाँ क्या हो गया, ए इंटू वन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल ओड विद जीरो इज ऑलवेज अ वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल को किसी के साथ ओड किया जाता है तो वो ए आता है, अगर किसी वेरिएबल को किसी के साथ एंड किया जाता है तब भी वो क्या आता है, आपका ए ही आता है। Clear? So again, you can come with your uh, idempotent idempotent law. That is, here you can say a plus a is equal to a, and a into a is equal to a. That will be also share in my previous slides and also explain with more detail. So again, you can come with a complement. अगर आपकी like expression के अंदर कोई complement present है, आप उसकी उस complement की particular variable के साथ या तो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, और एडिशन करने पर उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। क्लियर। ऐसे कम्यूटेटिव में क्या है कि रिवर्स हो जाना, कि रिवर्स मतलब कि अगर आप चाहे ए में बी ऐड करो या ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करे, दैट इज इक्वल टू योर बी इनटू ए और आइदर बी प्लस ए। क्लियर। एंड डबल नेगोशिएशन मीन्स कि हमने जो चीज पहले ही आपकी इन्वर्जन में थी उसको आपने दोबारा से फिर नोटगेट को अप्लाई किया तो उसका क्या हो गया, डबल नेगोशिएशन हो गया। तो डबल नेगोशिएशन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और आपको ओरिजिनल वन दोबारा से कंटेन हो जाता है। And by the use of De Morgan theorem, we can convert your and function into or and or function into your and. So that will be discussed in my previous slide. एंड देन बुलियन कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ शो किए हुए हैं कि आपके जो फंक्शन होते हैं वो उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है या उसकी वैल्यू वन भी हो सकती है। क्लियर। जैसे आपने दो वेरिएबल लिए हैं, इनपुट पे या तो अकेला ए होगा या अकेला बी होगा, लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि नोट ऑफ ए क्या होगा, आपका ए बार, एंड नोट ऑफ बी क्या होगा, आपका बी बार। अब देखो ध्यान से, उसने बोला ए एंड बी, ए एंड बी है, ए बी के साथ एंड ऑपरेशन कर रहा है, तो एंड ऑपरेशन के साइन को हम डॉट से शो करते हैं। अब ए एंड नोट ऑफ बी, नोट ऑफ बी मीन्स बी बार, तो ए आपका बी बी बार के साथ क्या कर रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही नोट ऑफ ए, नोट ऑफ ए एंड बी, नोट ऑफ ए मतलब कि ए का बार आ जाएगा, ए बार इंटू में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही नोट एंड, नोट एंड मतलब कि एंड के आगे आपने नोट लगा दिया तो क्या बन गया, आपका नेंड बन गया। तो एंड आपका क्या होता है, ए इंटू बी, आगे नोट लगाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, बार लग जाएगा। तो दैट एक्सप्रेशन विल बी इंडिकेट योर एक्सप्रेशन फॉर योर नेंड गेट। एंड सेम एज फॉर योर और कर रहे हो तो ए प्लस बी होता है। अगर ए और नोट ऑफ बी है, इट मीन्स ए आपका नोट ऑफ बी के साथ क्या कर रहा है, ओरिंग कर रहा है, तो ए प्लस बी बार हो जाएगा। ऐसे ही नोट ऑफ ए आपका बी के साथ कर रहा है तो वो बी हो जाएगा। एंड सेम एज फॉर योर अदर वन, द लास्ट गेट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और, एंड इस एक्सप्रेशन वी कैन राइट हियर ए इंटू बी बार प्लस में ए बार इंटू बी। क्लियर। अगर इसको आप इग्नोरिंग में चेंज करना चाहते हो तो इसके आगे आगे जब डबल बार लगाओगे और उसको डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू में बी बार। सो दैट यानी कि concept is very much important for you. What is the difference between your expression for your XOR and your XNOR gate? So remember these things very carefully. एग्जाम्पल अगेन लाउरिन अलजेब्रा का जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको अब जब एग्जाम्पल है वो एक लाइक लार्ज एक्सप्रेशन है, उसको आपने जो मैंने पीछे बुलियंस ला डिस्कस किए हैं उसकी हेल्प से आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। देन हाउ वी कैन चेंज दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन योर शॉर्ट फॉर्म, इफ योर एक्सप्रेशन इज a plus b into a plus c. Clear. You can write here a plus b into a plus c. So in that case,
So in that case, you can apply. If you multiply that particular bit, that is represented by a into a, again a into c, clear, and b into a and b into c. It means you can perform your bit by bit multiplication. So you can write the expression same here. As per your Boolean law, a into a represent your a, प्लस में ए सी, ए बी, प्लस में बी सी। अब आप इन दोनों में से, ये प्लस का साइन है, सॉरी, जो आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ, तो ए प्लस ए सी जो होता है उसके अंदर आप ए कॉमन निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस सी। तो अगर आपने किसी बिट के साथ ओरिंग फंक्शन परफॉर्म किया, जैसे 1 प्लस ए क्या था आपका, वो आपका ए जीरो है तब भी वो 1 आएगा, अगर ए 1 है तब भी उसने 1 ही आना है। तो 1 प्लस सी आपका 1 होता है। तो यानी कि सी मतलब कि सी, हम सी की वैल्यू ज्यूम करेंगे, अगर सी जीरो है तब भी 1 प्लस जीरो 1 आना है, अगर सी 1 है तब भी 1 प्लस 1 क्या आना है, एज पर योर ओरिंग फंक्शन 1 ही आना है। तो आपका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, आप 1 प्लस सी की वैल्यू क्या पुट करवाएंगे, यहाँ पे 1 पुट करवाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ए इंटू 1। क्लियर। अगेन यू कैन राइट हेयर, ए बी रह गया और दूसरा क्या रह गया आपका, बी सी रह गया। अब इनमें से आप कॉमन निकालिए, यहाँ से फिर कॉमन निकलेगा, वो 1 प्लस बी रह जाएगा। अगेन 1 प्लस बी इज इक्वल टू योर 1। तो ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए रह जाएगा, ए प्लस बी सी। इट मीन्स आपने बाय द यूज ऑफ बुलियन लॉ, और कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनइडेंटिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने उस एक्सप्रेशन को क्या कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। एंड द लास्ट एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी। सो अगर आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको 4 गेट्स यूज करने पड़ते हैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ योर बुलियंस अलजेब्रा। लेकिन आपने कुछ बुलियंस लगा के, जैसे मान लो यहाँ पे आपने ए इंटू ए लगाया, यहाँ पे 1 प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगी, फिर यहाँ ओरिंग प्रॉपर्टी लगी, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगी, दोबारा फिर एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो गया आपका। तो आपने क्या यानी कि नलीफाई किया है कि हमने विद द हेल्प ऑफ सम बुलियन लॉ व्हिच वी कैन डिस्कस इन माय प्रीवियस स्लाइड, उस बुलियंस लॉ के हेल्प से हमने एक लार्ज एक्सप्रेशन को शॉर्ट एक्सप्रेशन में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपने अगर किसी लार्ज बुलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया है, अगर आपका एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में चेंज हुआ है तो उसके उसकी डिजाइनिंग में आपको उतने ही गेट्स क्या करने पड़ेंगे, कम यूज करने पड़ेंगे। सो दैट इज कंक्लूजन फॉर योर बुलियन अलजेब्रा। सो दैट इज अ मेन टॉपिक फॉर यू। Again we can come with your logic gates. What do you mean by logic gates? That will be discussed in my previous video. We can study the various logic gate, either and और एंड से आपका नैंड बना है, और से आपका नोर बना है। वन गेट इज कॉल्ड योर नोट गेट एंड अदर वन इज कॉल्ड योर एक्सोर एंड एक्सनोर गेट। तो टोटल आपने 7 गेट स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो उन 7 गेट के अकॉर्डिंग अब आपको अगर मार्केट से गेट लाने को बोला जाए तो यू कैन नोट से कि हमें एंड गेट चाहिए, आप बोलोगे हमें एंड गेट की आईसी चाहिए। तो इन गेट्स को हम किसी टीटीएल और सीएमएस के थ्रू हम किसी चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो पर्टिकुलर चिप जिस गेट के लिए डिजाइन की है उसको किसी नंबर ऑफ सीरीज नंबर से हम शो करते हैं। तो लाइक जैसे मैंने पहला एग्जांपल किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 7408 क्वाड टू इनपुट एंड गेट। इट मींस क्वाड का मतलब क्या है कि 7408 जो नंबर है वो आपकी एंड गेट की आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? एंड गेट को। क्वाड का मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 गेट्स हैं, ठीक है। तो उन चारों गेट्स के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन, अगर सपोज करो किसी एप्लीकेशन के अंदर 8 गेट यूज हो रहे हैं टोटल एंड गेट, तो उसके लिए आपको 2 क्या लेने पड़ेंगी, एक गेट से आपको अगर 4 एंड गेट मिल रहे हैं तो आप 2 आईसी यूज करोगे, किसकी? 7408 की। तो 7408 सिग्निफाई योर एंड गेट, क्लियर। एंड वन इज कॉल्ड योर ग्राउंड हियर, अनदर वन इज कॉल्ड योर वीसीसी। एंड बाकी आपके गेट के कनेक्शन दिए हुए हैं, 1 एंड 2 पे इनपुट आएगी और 3rd पे क्या आएगी आपकी आउटपुट, एंड सेम एज फॉर योर अदर गेट। ऐसे अगर मान लो आपको बोला जाए कि आपने और गेट पे कोई काम करना है तो आप मार्केट से 7432 की आईसी लेके आओगे। उसका आईसी नंबर क्या है? वो भी क्या है? आपके 4 क्वाड आईसी है, जिसके अंदर आप एक टाइम में 4 गेट की सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड सेम एज फॉर योर अदर गेट्स, ठीक। तो आप इन आईसी नंबर के अकॉर्डिंग यू कैन डिफरेंशिएट द वेरियस लॉजिक गेट्स विद रिस्पेक्ट टू योर आईसी। सो 7400 इट्स द नंबर ऑफ योर NAND gate, 7402 for your NOR gate, एंड 7486 दैट इज कॉल्ड योर एक्सोर गेट। तो कई बार हमें एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि यू कैन एक्सप्लेन द लॉजिक आईसी फॉर योर एक्सोर गेट और आइदर फॉर योर नोर गेट। तो आपको ये पर्टिकुलर एक सिंपल सा डायग्राम है,
वो बना के और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि हम उसके 12 एंड 13 पिन यूज एज एन इनपुट एंड 11 पिन यूज एज एन आउटपुट। क्लियर? तो इस तरह आप किसी भी लॉजिक गेट की आईसी को एज पर योर नंबर सिग्निफाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? हमारा जो पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन योर 0 एंड 1। Clear? Every code that should be handled with the help of your 0 and 1. 0 stand for your logic, you are not connected to your supply, and if you stand for your 5 volt supply, it means that represent your logic 1. क्लियर? तो मैंने यहाँ अपने कुछ नंबर सिस्टम के थ्रू आपके कुछ सीरीज बनाई हैं, जैसे सॉरी जैसे सपोज करो ये चीज जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है दैट इज आइदर द नंबर कोई रियल नंबर होगा या फिर कोई क्या होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। तो अगर आपका नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है तो जो आपका रेडिक्स से इधर वाला पार्ट होगा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसको -1 -2 और अप टू -m तक शो करेंगे। और जो रेडिक्स से इधर वाला पार्ट होगा वो आपका पॉजिटिव नंबर को इंटीजर पोर्शन को डिनोट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट योर D0 D1 अप टू Dn। क्लियर? Dn-1 it means that should be extended up to a desired limit। क्लियर? तो मैं अब इस नंबर सिस्टम को आगे वेरियस में नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्टली आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर है इसके अंदर अब आपका रेडिक्स पॉइंट नहीं है, दैट एग्जांपल वी कैन शो विद यू दैट इज विदाउट द रेडिक्स पॉइंट। इट मींस इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बेस पावर 2 रेज़ पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। इट मींस 2 रेज़ पावर 0 into 1, 2 रेज़ पावर 1 into 1, 2 रेज़ पावर 2 into 1, 2 रेज़ पावर 3 into 1 एंड 2 रेज़ पावर 4 into 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, इनके एडिशन के बाद 31। तो 31 शो योर डेसिमल नंबर एंड so that decimal number will be converted with the help of your binary number। Clear? Again you can come with your ones and twos complement. So how you can done the ones complement? By the use of ones complement you can inverse that particular bit. So I can show an example with you. Here we use the number of bits that complement which will be covered by 1 going to 0 and 0 going to your 1। एंड इफ आप लास्ट बिट में अगर एक 1 ऐड कर देंगे तो उसी नंबर का, ये अपने वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि जो भी बिट दिए हो उनका इन्वर्स करना। अगर उसका इन्वर्स करके जो आंसर आपको मिलेगा उसमें अगर आप लास्ट बिट में 1 ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपका डबल इन्वर्जन हो जाएगा। सॉरी नहीं, सॉरी, नो 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 डबल इन्वर्जन। अगर 1 बिट ऐड कर दोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, आपका 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ वेरियस एग्जांपल शो किए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं और सोल्व भी कर सकते हैं कि हाउ यू कैन गेट द पर्टिकुलर नंबर इनटू योर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। जो भी नंबर था उसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट किया, उसमें लास्ट बिट में 1 ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आगे है साइन मैग्नीट्यूड। तो जो आपने वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो टर्म मैंने पहले बताई है आपको, दैट टर्म विल बी helpful in when you can change the sign of that particular number। It means if you are having, you deal with a positive number, then how it is changed in your negative number? If you deal with your negative number, then how it is changed in your positive number with the help of your ones and twos complement। So here we show the sign that is -17 10। तो अगर 17 को आप कन्वर्ट करेंगे इन योर बाइनरी फॉर्म तो कैसे करेंगे, जैसे आपने लिखा हुआ है 17 यहाँ पे, तो 17 को किस फॉर्म में लिखा जाता है, अगर ये +17 था उसको अपने -17 की फॉर्म में बनाना है तो पहले 17 का आप बाइनरी फॉर्म में चेंज कीजिए। वो कैसे होगा, वही सेम कैसे लिखते हैं, 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4 एंड 2 रेज़ पावर 5। क्लियर? ध्यान से देखिए, अगर इनसे खोलेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 2 4 8 16 एंड 32। हमें क्या चाहिए, 70 चाहिए। तो मैंने जो 16 पोजीशन थी और जो पहली पोजीशन है उनको ऐड करने पर हमें 17 मिला, तो मैंने उन पर्टिकुलर बिट को क्या कर दिया है, 1 कर दिया। इट मीन्स यू कैन ओनली राइट द वेटेड कोड हियर, आइदर 1 2 4 8 16 एंड 32। और जिन बिट्स को ऐड करने पर आंसर 17 आ रहा है उनके रिस्पेक्ट में हमने वहां प्लेस क्या करवा दिया, 1 प्लेस करवा दिया है, तो वो आपका क्या मिलेगा, ये नंबर मिल जाएगा। अब देखो, अगर ये +17 था, इसको हमने -17 में रिप्रेजेंट करना है, तो आप जो इसकी लास्ट बिट है, मुझे नहीं पता वो क्या है, जो भी हो, अगर वो 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 से आप 1 में चेंज कर देंगे उस बिट को तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, शाबाश, वो नेगेटिव नंबर में चेंज हो जाएगी। 1 रिप्रेजेंट योर नेगेटिव साइन एंड 0 रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब जो भी नंबर है
आप उन बिट्स को इन्वर्ट कीजिए। इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1, ये 0, देन 111 अगेन 0। तो ये उस नंबर का क्या मिलेगा हमें, वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर उसकी लास्ट बिट में आप 1 ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यू कैन solve that particular example with the help of your notebook and pen. You can easily note down these steps, and you can solve that particular examples by itself. Clear? Again, you can come with the binary addition. How you can done the binary addition? In the previous topic, we can only like focus on your addition with the help of your OR gate and multiplication with the help of your AND gate. So the binary addition, that is a part of your binary arithmetic. So in which some changes will be, you can say analyze, that will be see in a proper way. आपने, आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर को आपने ऐड करना है। तो जो नंबर आपने ऐड करना है, जैसे सपोज करिए 2 नंबर है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। क्लियर है? अगेन 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। लेकिन ध्यान रखिए 1 प्लस 1, अगर आप लॉजिकल ओरिंग कर रहे होते तो इसका आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1 आपका 0 आएगा और 1 क्या आएगा, आपका कैरी आ जाएगा। एंड सेम एज एग्जाम्पल फॉर योर अदर वन, एंड सेम यू डन द दैट इज अ रूल ऑफ योर बाइनरी एडिशन। 0 प्लस 0 0 होता है, कैरी भी 0। 0 प्लस 1 1, कैरी भी 1। 0 सम 0 एंड कैरी 0। 1 प्लस 0 1, तो आपका कैरी 0 आया। और अगर 1 प्लस 1 करते हैं तो सम 0 आता है और कैरी क्या आता है, 1 आता है। तो उस केस में मैंने लिखा हुआ है यहाँ, जो आपका सम आएगा वही आपका रिजल्ट आता है। तो सम क्या आ रहा है, इन दोनों को मिला के लिखिए, 0 1, ये 1 है और ये भी 1 है, और यहाँ पे क्या आंसर आया है, 0 1। इट मीन्स आपका रिजल्ट 0 है, लेकिन साथ में क्या आ गई है, एक कैरी आ गई है। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है कि 0 माइनस 0 0 होता है, लेकिन 0 माइनस 1, इट मीन्स अगर आपकी एलएसबी बिट स्मॉल है तो बोरो आएगा। अगर एलएसबी बिट लार्ज है तो बोरो नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे 0 माइनस 1 कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट तो 1 आएगा, लेकिन साथ में बोरो भी क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। एंड 1 माइनस 0 के लिए भी रिजल्ट क्या होगा, आपका 1 होगा, लेकिन उसके अंदर बोरो नहीं आएगी। इट मीन्स आपकी जो अपर बिट है, अगर वो लार्ज है तो बोरो नहीं आएगी, अगर वो स्मॉल है, यानी कि जैसे मान लो 0 माइनस 1 कर रहे हैं तो बोरो आएगी। क्लियर? लेकिन अगर 1 माइनस 0 करोगे तो बोरो नहीं आएगी। दैट रूल विल बी एज सेम एज योर डेसिमल सब्ट्रैक्शन, कि अगर हम किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो आप कैरी लेते हैं, लाइक टू मेक योर सब्ट्रैक्शन वेरी इजी। बट सेम वे, इफ यू 0 माइनस 1 कर रहे हैं तो आपका बोरो आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। और अगर 1 माइनस 0 कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन बोरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वही रूल्स लगाइए जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। दैट इज 1 माइनस 0 0 रिजल्ट, 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। 0 माइनस 1, दैट पॉइंट वुड बी सी 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 मतलब कि 1 आएगा, लेकिन आपका साथ में एक बोरो आएगा, तो बोरो आपका नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 अगेन 0, एंड 0 माइनस 0 0। क्लियर? तो ये आपका आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्या आ गया, आपका डिफरेंस की फॉर्म में आ गया। क्लियर? और यू कैन से बाइनरी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। अगेन यू कैन डील विद योर कन्वर्ट या बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ठीक है, आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इन दिस वे अगर उसको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है तो ऑक्टल नंबर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 2। ऑक्टल नंबर की वैल्यू आप 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए 8 को अगर आप 8 को कवर करना है, नंबर ऑफ स्टेजेस आपकी 8 हैं, तो उसको पर्टिकुलर 3 बिट से आप कवर करेंगे, 2 टू द पावर 3 से। क्लियर? तो उसको कवर करने के लिए आप जो भी बाइनरी नंबर है उसके आप एलएसबी से पेयरिंग करनी स्टार्ट करेंगे, 3 बिट की। तो देखो ये नंबर था, मैंने एलएसबी से लिया तो ये 110 आया। ठीक है, फिर क्या आया 110 के बाद 001। ठीक है, इसमें अब जो बिट कम पड़ रही है फर्स्ट स्टेज पे, उसमें हम अपनी तरफ से 2 एलएसबी 0 ऐड किए हुए हैं। क्लियर? तो अब इस नंबर को जब आप डेसिमल में चेंज करोगे तो ये जो 001 है, दैट विल बी शो योर 1, क्योंकि 1 2 4, अगेन 1 2 4, 1 पे 1 आया तो 1, 6 1 2 4, 4 और 2 6, तो ये 6 आ गया। तो आपने बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर लिया है, सॉरी डेसिमल से, सॉरी बाइनरी से आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। आपने क्या किया, जो भी बिट थी उसकी एलएसबी बिट से आपने 3 की पेयरिंग की। अगर फर्स्ट स्टेज पे आपकी इनपुट्स कम रह गई हैं तो आप अपनी तरफ से प्रीफिक्स 00 ऐड कर देंगे, जितने भी आपको कम पड़ते हैं। देन उसको आपने क्या किया, एज पर योर बाइनरी वेटेड कोड की हेल्प से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने जब 3 की पेयरिंग की है तो बाइनरी 6 में कन्वर्ट होगा, ऑक्टल में
तो उसकी बेस पावर क्या आ जाएगी, आपकी 8 आ जाएगी। एज सेम एज फॉर योर, आपने जब बाइनरी से ऑक्टल में मैंने एक रेडिक्स वाला एग्जांपल शेयर किया है, तो इसमें भी वही है कि सिंपली आप पेयरिंग, उस केस में आप एलएसबी से स्टार्ट हो रहे थे जब रेडिक्स नहीं था, इसमें आप एमएसबी से इस तरफ से स्टार्ट होंगे। क्लियर? तो 101 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, 001 1 को, एंड 100 आपका 4 को, और इसकी रेडिक्स पावर कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में ऑक्टल था, आपने किस में कन्वर्ट किया, नहीं, ये बाइनरी है और आपने ऑक्टल में यहाँ पे रॉन्ग थिंग मेंशन की हुई है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बेस पावर 8 आ जाएगी। क्लियर? एंड सेम एज फॉर योर अदर। ठीक है, तो इस तरह आप जब कोई सिफिक्स वाला नंबर आ जाता है, तो सिफिक्स से इधर वाले जो है एलएसबी से स्टार्ट होंगे, और रेडिक्स से इधर वाले आपके एमएसबी से स्टार्ट होंगे। तो इस तरह आप 3-3 बिट की पेयरिंग करते जाओ। अगर इस तरफ से 3-3 बिट की पेयरिंग कर रहे हो तो प्रीफिक्स यहाँ ऐड हो रहा है। अगर इस तरफ से 3-3 बिट की पेयरिंग कर रहे हो और बिट कम रह रही हैं, तो आपका प्रीफिक्स लास्ट स्टेज पे ऐड होगा। क्लियर है? तो इससे आप पर्टिकुलर किसी भी चीज को लाइक ऑक्टल से, सॉरी, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सेम एज फॉर योर ऑक्टल ऑक्टल एडिशन। तो ये कैसे किया है, इसका एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ कि कैसे होगा। जैसे 53 में से 37 माइनस करना है, ठीक है, तो आपने उस 53 और 37 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर नीचे आपका दैट विल बी परफॉर्म योर ऑक्टल एडिशन विद द हेल्प ऑफ योर टूस कॉम्प्लीमेंट। तो जो नंबर आपका नेगेटिव है, उस नेगेटिव नंबर को सबसे पहले आप लाइक बाइनरी में चेंज करने के बाद उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो टूस कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर आएगा उसको आप फर्स्ट बिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सो दैट रिजल्ट विल कैरी योर octal addition as per your two's complement. Clear? And same as for your other one. Here we show your hexadecimal number in the form of your 0 to 15, and in decimal you can write 9. 9 के बाद आपके 15 तक प्रेजेंट किया जाता है, बट इन हेक्साडेसिमल आफ्टर 9 योर 10 विल बी रिप्रेजेंट योर ए एंड 11 विल बी रिप्रेजेंट योर बी। इट मीन्स अगर कोई नंबर है, अगर उसमें 10 आ रहा है, तो अगर वो डेसिमल है तो 10 लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो हेक्साडेसिमल है तो उसमें ए लिखा जाएगा नोटेशन से। ऐसे 11 विल बी रिप्रेजेंट बाय योर बी, एंड 12 रिप्रेजेंट बाय योर सी, एंड 13 रिप्रेजेंट बाय योर डी। Again, you can come with your one conversion, that is hexadecimal to decimal or either decimal to hexadecimal. Here we also share a one example with your radix point. So so as per hexadecimal, you can pairing of your, you can getting a 16 combination. So that's why we can use 16 its base power. If it is base power is 16, it means that number show your hexadecimal number, and you can convert the decimal number from your hexadecimal by the use of simple calculation. क्लियर? तो अगर आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है, तो वही सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट से इधर वाले जो होंगे दैट विल बी शो योर रियल पार्ट, और यू कैन से पॉजिटिव नंबर, और जो पॉइंट से इधर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर इमेजिनरी, यू कैन से नेगेटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर 16 की पावर 0 इंटू में ए का डेसिमल नंबर क्या होगा, 10, एंड क्योंकि आपने डेसिमल नंबर 10 को डेसिमल नोटेशन में ए को 10 बोला है, और हेक्साडेसिमल में उसको आपने क्या बोला है, ए बोला है, तो मैंने यहाँ सिंपली 10 लिख दिया ए की जगह। तो 16 की पावर 0 इंटू 10, देन 16 की पावर 1 इंटू 3। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो 16 की पावर 2 इंटू दैट पर्टिकुलर नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ इस तरफ पॉइंट से इधर वाले माइनस ही होंगे, तो 16 की पावर 1 इंटू -1 इंटू 2, और एफ किसको शो करता है, 16 को शो करता है इन डेसिमल में। तो एफ का पावर कितना आएगा, सॉरी, 0 से लेकर 15 तक चलते हैं, तो 15 तक शो करेगा। 15 इंटू में 16 की पावर -2। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, और जो आंसर आएगा वो आंसर आपको किस में मिलेगा, एज पर योर डेसिमल, क्योंकि आपका नंबर बेस पावर 16 में था और आपने उसके बेस पावर 10 विद द हेल्प ऑफ डेसिमल नंबर से उसको डेसिमल में चेंज कर लिया। ठीक है, अगर इसका अगर उल्टा कन्वर्जन करना हो, अगर आपने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन की है विद 16 की पावर से। क्लियर? और अगर आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है, तो आप उस नंबर को 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास नंबर था 95.5। क्लियर? 95 को पहले आपने 16 से डिवाइड किया, तो जो भी रिमाइंडर आया उसको लिखते जाएंगे। रिमाइंडर यहाँ 15 बचा, और फर्स्ट केस में वो डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ सीधा 5 आ जाएगा। क्लियर? तो 15 को हम एफ से शो करते हैं हेक्साडेसिमल में, और 5 को 5 से। इट मीन्स 95 को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, हेक्साडेसिमल नंबर में। क्लियर? सो here we also show one more table with your various code in binary codes.
You can start with your B0, B1, B2 and B3 and up to 15. आपने 15 तक की टेबल को डिस्क्राइब किया हुआ है. बीसीडी नंबर आपके अप टू 9 तक आते हैं. 9 के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. क्लियर. इट मीन्स अगर किसी का बीसीडी कोड लिखना है, 10 का लिखना है, तो 1 के लिए अलग बनेगा कोड और 0 के लिए अलग. लेकिन अगर आप 10 को लाइक बाइनरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो सिंपल इसी एक ही फॉर्म में लिखा जाएगा. एक्सेस 3 मतलब कि आप हर एक बाइनरी कोड में 3 ऐड कर दीजिए तो आपको एक्सेस 3 मिल जाएगा. जैसे 0 में 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा. तो 3 कैसे लिखते हैं? 1 2 4 8. 2 और 1 3 मिलते हैं. ऐसे अगर यहाँ पे 1 था, 1 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर में कितना आएगा? 4. 4 का नंबर क्या होता है? 1 2 4 8. तो 4 को आपने 1 कर दिया और बाकी को 0. और ग्रे में अगर किसी कोड में कन्वर्ट करना है तो ग्रे में कन्वर्ट करने का एक लॉजिक होता है. वो कैसे होता है कि फर्स्ट नंबर आपका एज इट इज आएगा. आप फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में जब ऐड करेंगे 0 प्लस 0, तो वो सेकंड नंबर आ जाएगा यहाँ पे. फिर सेकंड को जब थर्ड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपकी थर्ड बिट आ जाएगी. फिर थर्ड को जब आप लास्ट में ऐड करेंगे तो आपकी लास्ट बिट आ जाएगी. तो यही फिनोमेना आप बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट बिट एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर को उठाया, ये वाला 1000 उठाया, तो यहाँ से ले लीजिए 0011. इसका इक्विवेलेंट कोड ये बन रहा है. तो देखिए 0 का 0 एज इट इज, देन 0 प्लस 0 0, सेकंड बिट 0 आ जाएगी. 0 प्लस 1 1, ठीक है. थर्ड बिट 1 आ जाएगी. 1 प्लस 1 0. ठीक है. तो आपका 0111 का आंसर क्या आ रहा है? 0010. So how you can convert that particular binary number into your gray number? So binary number is called your non weighted code. It means आप B3 के बाद भी B4 B5 B6 up to so many bit तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. बस आपका नंबर इसी फॉर्म में एक्सपेंड होगा. लाइक 2 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, then 2 to the power 4 is equal to 16 and so on. But BCD that will be extend up to 2 to the power 4 and having the value up to 9. और एक्सेस 3 भी आपने उन्हीं बीसीडी का एक्सेस 3 निकाला है. ठीक है. क्लियर. देन बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है तो आपको फर्स्ट बिट एज इट इज, और फर्स्ट में जब सेकंड ऐड करोगे तो यहाँ पे ग्रे की सेकंड बिट आएगी. देन सेकंड में जब थर्ड ऐड करोगे तो यहाँ ग्रे की थर्ड बिट आएगी. और जब लास्ट वाले में ये वाला ऐड करोगे तो यहाँ पे उसकी कौन सी बिट आ जाएगी? फोर्थ बिट आ जाएगी. क्लियर. सो दैट इज अ यू कैन से सिंपल कैलकुलेशन एज पर योर नंबर सिस्टम. सो आई कैन कवर वेरियस टॉपिक टुडे. If you are having doubt, then you can please ask me. Thank you for listening my lecture. Low